And you guys were able to find the YouTube video, okay, right? It's working for everyone and everyone was able to access it? Yes. Perfect. All right, I think we're recording. Welcome everyone, this is day 2. What we're going to be discussing today is child choice, answering any of your questions, and maybe we'll touch on shared control as well. ये जो है वो PRT की strategies हैं, इनको मैं usually combine करती हूँ क्योंकि बगैर काम करना मुश्किल है. हमने focus किया था basically ज़्यादातर language के ऊपर और child motivation के ऊपर जो कि Hanen की strategies भी होती हैं और PRT में भी काफ़ी common है. मगर हम आज जिन चीज़ों के ऊपर focus करेंगे would be, first of all, we'll answer your questions and then we'll move on to child choice and shared control. So let's begin. इस तरह आपने कुछ सवाल ये पूछे थे और बहुत अच्छे सवाल पूछे थे कि आपके बेटे को रिसेप्टिवली आप चाहती हैं कि लैंग्वेज ज़्यादा इम्प्रूव हो. So when you're like talking to him and you're giving him choices. Oh, someone dropped out. Sorry, excuse me. So when you're telling him where you're going, park wali aapne jo example di thi, aur iske alawa bhi when you're like talking to him, you feel like unki receptive is not very strong. Are you able to give some more examples maybe for the group? Some more examples. For example, if I'm asking him that, okay, maybe I'm asking him, where is Ami? Where is Ami? Or Ami is outside, or things like that, he cannot understand. So, what else? Ek aapne example di thi कि come and sit here. Yeah, come and yeah. sit. And yes. You felt that maybe he wasn't always understanding that. Or we'll just take that as an example for now. Okay. Or even also aapne kaha tha going up and coming down. Yes. मेरा ख्याल है कि he does understand what going up means because he's so persistent about going up. उनको problem पसंद है. So I do think that he might know what that is. You can actually also give him a picture of the upstairs area, and you can write next to it upstairs, or you can give it a name, whatever that looks like, the bedroom or the living room, whatever that is for you. So you can actually Google it for him so that instead of always, him getting confused as to what that is, वो उनको पता हो, difference पता हो कि upstairs का area है, ये downstairs का area है, और अम्मी का क्या मतलब है. आप simplify भी कर सकती हैं, area A, area B, or you can, कुछ interesting नाम दे सकती हैं from his cartoons ताकि उनका interest बढ़े. Maybe it's a play area for him. तो उधर आप उनके खिलौने रख सकती हैं. तो you'll be like, okay, play area is upstairs. Yeah, कोई और चीज़ is downstairs. The other thing that you mentioned was, is a good example. Come over here to sit down, or sit down over here. आप लोग मुझे ये example दें कि आप लोग कभी किसी ऐसे country में गए हैं जिधर अंग्रेजी और उर्दू नहीं बोली जाती. It's a different language you have to speak. So, it's a language that you don't understand. चाहे वो Europe हो, Paris हो, तो मैं भी नहीं गई. But Iran गई हूँ मैं, and actually no one knows Urdu over there. Not a lot of people do. और बड़े इशारों में हमें बात करनी पड़ती थी. तो आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है? मे बी इसका आपका होगा क्योंकि जी बिल्कुल मेरा है, क्योंकि मैं मलेशिया में अभी मुझे 10 साल हो गए. शुरू में आई थी मैं जब 18 साल की थी, यहाँ यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिली थी, तो बिल्कुल यहाँ पर इतनी इंग्लिश नहीं बोली जाती. Mostly communication is in their local language, which is Malay, and now I'm very fluent in their language. क्योंकि वो अक्सर वही करती हैं उधर मलेशिया में. शुरू में मुझे बहुत शुरू में आप जब you were just new there, आप कैसे लोगों से सवाल पूछती थी या उनसे? बहुत मुश्किल होता था क्योंकि उनकी इंग्लिश भी जैसे अपनी इंग्लिश है ना, वो जैसे हमारी इंग्लिश और उनकी इंग्लिश में बहुत फर्क है. तो काफी मुश्किल होता था. वो कुछ कहते थे मुझे समझ में नहीं आता था, मैं जो कहती थी उनको समझ में नहीं आता था. तो बस पता नहीं कैसे काम चलाया. तो जब तक वो कुछ चीजें दिखा के ये चीज पूछ रही हूँ मैं, ये तो ऐसे ही टाइम गुजर गया. Answered your question. हमें जो है वो इंसानों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझने में इतनी मुश्किल होती है. तो कैन यू इमेजिन कि फॉर अ चाइल्ड जो कि ऑटिज्म के बबल में है, उसके लिए लैंग्वेज प्रोसेस करना कितनी मुश्किल, क्योंकि लैंग्वेज प्रोसेसिंग उनका इशू ऑलरेडी है. ऑडिटरी प्रोसेसिंग में भी उनके डिलेज हैं, तो उनके लिए लैंग्वेज समझना ज़्यादा मुश्किल है. तो अगर
आप इमेजिन करें कि आपके अर्ली डेज हैं और आप एक ऐसे इंसान से बात कर रही हैं जो मलय लैंग्वेज में आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको उनसे इशारों में बातें करनी पड़ेंगी, उनको चीज़ें दिखा दिखा के, इशारे कर करके उनको समझाना पड़ेगा. वी कॉल इट सपोर्टिंग द लैंग्वेज, राइट? तो आपको अपने बेटे के साथ भी ऐसा ही करना है, right? You have to actually support his language with a lot of visual aids, ishare, cards if you can, iPad ke upar tasveerein dikha ke. You have to actually help him. Does that make sense? Yeah. Right? So when you're saying ke come sit over here, aap Malay mein kaise explain karti hain? Ishara karti hain. Yeah. Yeah. Right? So that's what you have to do. Okay. Yeah. So that's what I want you to start thinking about कि इशारे ज़्यादा करने. और ये मुझे पूछने का सवाल एक्चुअली चांस नहीं मिला कि लोग अपने घर में कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. Are you guys using English or you using Urdu? For you would probably be difficult क्योंकि Malay भी होता होगा. तो try and stay consistent with your language. Yeah. Come इधर आ जाओ बैठ जाओ, and the other time you're like come over here. It will get confusing. Stay consistent. Okay. Yeah, I try to maintain English, but then of course my mother tongue is Sindhi. So sometimes when I speak to my mom, so it's Sindhi. So and then I speak sometimes automatically when naturally I'm angry or something, then Sindhi comes out from my mouth. So it's but I try to make English as basic for with him. Yeah. English will probably be the best. अच्छा, ये आपने voice notes पे सवाल भेजे थे, तो I'm trying to remember. आपका कोई और भी सवाल था? Yes, regarding aggressiveness or meaning if he's upset about anything, so he would bang his head towards me or he will cry extensively. And then sometimes I don't know what triggered him until I realize what triggered him. Maybe something fell down from the table or something came in inside sofa or something, I don't know, maybe something he remembered or he want to off the light or he want to on the light or he want to go outside or something is itching because he cannot explain. So I have to figure out. Until I figure out, he will cry like, wow, very, very, yeah. So how to control that? So usually what I do to really quick calm for him is I will just turn on TV, put his favorite cartoon. So that would immediately switch his mood from whatever he was, and then he would forget that thing, and then he would just sit calm. So yeah. You can do this if you have guests over. और आप नहीं चाहती हैं कि कोई ड्रामा और बदमज़गी हो तो अच्छा सही. लेकिन take this as an opportunity क्योंकि अगर आप टीवी लगा के redirect कर देती हैं तो आपकी opportunity miss हो गई. Tantrum से घबराएं नहीं. It's a learning opportunity, right? बच्चे रोते हैं, बच्चे हंसते हैं, ये common चीजें हैं. हाँ, aggression is something you want to tackle right now. जितना early aggression आप tackle करेंगी उतना ही better होगा. पर aggression का function समझना जरूरी है. And in this case it sounds like कि उनको language की frustration है. He cannot explain कि उनको क्या चीज जो है वो trigger कर रही है या क्या चीज गलत हो गई है, आपको बता नहीं सकते. So then he's going to his go-to mode, which is उनका aggression. उनको पता है कि जब वो aggressive होंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, you will come running to help him, right? So it's become a communication for him. So you just need to replace that. आपको एक different form of communication देना है. So how about language बहुत simple रख के, if we go by the example of के table पे कुछ था और गिर गया, you could be like uh-oh, and just very small, because I know your son is still a little bit young. You can say oh or oh no. They're both appropriate because it's letting you know कि कुछ गलत हो गया है, and then you can come running, and that's better. ठीक है? In time you can also teach him help, right? Because I'm not sure कि वो कितने verbal हैं. अभी I think वो सिर्फ labeler पर ही हैं, तो I will just give you a single word right now. Okay. जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में explain किया, जिस टाइम पे वो activated होते हैं वो एक learning opportunity तो है, लेकिन हम we cannot force it because they're already worked. तो हम सब model कर सकते हैं. अगर उन्होंने आगे से imitate कर दिया तो immediately we can, okay, you dropped your toy, there you are. और shared control कभी जैसे कि मैंने वीडियो में explain किया था, I think shared control would also be better, but आपको try करने के लिए do it first when he's not in a bad mood.
क्योंकि जब अगर वो अग्रेसिव होंगे या चार्ज्ड होंगे तो आपको ये करना थोड़ा मुश्किल होगा. मैं शेयर्ड कंट्रोल की थोड़ी और एग्जांपल्स भी आज दिखाना चाहूँगी. तो आई थिंक दोज आर फॉर योर क्वेश्चंस. आई थिंक कि सारा ने भी कुछ सवाल भेजे थे. आई विल टेक 2 minutes to answer those. Sarah. And she was actually asking कि बच्चे को सर के ऊपर पानी की फीलिंग नहीं चाहिए. He does not want his hair washed. तो क्या करना चाहिए? And actually a lot of these things are sensory issues, right? हमारे बच्चों को एक एंजाइटी डेवलप हो जाती है डिफरेंट टेक्सचर्स को लेके, डिफरेंट सेंसेशंस को लेके. वो यूज्ड टू नहीं होते बिकॉज वो प्रोसेस थोड़ा डिफरेंटली करता है. तो अगर सर के ऊपर हम लोटे भर भर के पानी डाल रहे हैं तो दे मे नॉट बी हैप्पी अबाउट इट. हमें करना क्या है कि हमें उन्हें डिसेंसिटाइज करना है. तो वी वांट टू गो वेरी वेरी स्लो. अगर वो बाथ टब में बैठे हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू मेक अ वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस. तो आप बाथ टब के अंदर कुछ नए टॉयज लेके आएँ, बाथ टाइम के सॉन्ग्स गाएं. Obviously under 5 is what I'm expecting कि ये बच्चों के challenges हैं, because that's what is age appropriate. और फिर आप आहिस्ते आहिस्ते छुप छुप के थोड़ा सा पानी सर के पीछे डालें, just to get them used to the sensation कि उनके बाल गीले भी हो सकते हैं. तो that's a sensory need. As well as she mentioned कि वो एक I think apartment में रहती हैं दुबई में, और उनके लिए बच्चे को chase करना इतना आसान नहीं है, and the child wants to run back and forth. तो मैंने उनको बोला कि run in a circle. To join him, run in a circle but imitate him. क्योंकि अगर वो उनके पास इतनी space है कि वो आगे पीछे भाग रहे हैं, then you have space as well. तो जिस हद तक possible हो आप बच्चे को imitate करें. उधर ही से बच्चा आपसे कनेक्ट करेगा, एंड दिस इज टेम्पररी. जैसे बच्चा कनेक्ट करेगा आप इंट्रूड करेंगे और आप उनको एक नई चीज सिखाएंगे, जो कि हमने कल देखी. Does that make sense to everyone? Yes, actually मुझे भी यही इशू था. वो पानी नहीं डालता था सर पे ना, बहुत रोता था, और जब मैं पानी डालूं तो मुझे हक कर लेता था. तो मैंने बहुत उसके लिए ये किया कि एक वो पूल लिया, जो स्विमिंग पूल जिसमें थोड़ी हल्की स्लाइड हो, इस तरह की एक्टिविटी. सो for him to more play with water and get used to water, and I would splash water on his face continuously, splash on his back, so that he would get used to it, and then he would enjoy. And then slowly now, alhamdulillah, he's okay. He will sit in the chair during shower. I will give him shower, and I will put water not full of mug, just very little bit on here, little bit slowly. Very so now he's okay. Yeah. कॉमन. और पता है कभी कभी फेजेस आते हैं और चले जाते हैं. जैसे मेरे बेटे को एक टाइम पे बाथ टाइम बहुत पसंद था. हमने कहा हाँ रोज एप्सम सॉल्ट बाथ, नथिंग लाइक इट. फिर उसको बाथ टाइम पसंद ही नहीं. मैं आगे पीछे मिन्नतें कर रही हूँ कि प्लीज बैठ जाओ, वी हैव टू डू दीस एप्सम सॉल्ट बाथ्स. नो. So now we're just doing magnesium sprays क्योंकि they actually also help with the sulfation. तो अगर किसी को भी bath time से issue हो रहा हो तो they can do that instead. क्योंकि yeah, no bath time here. तो किसी ने शायद mention किया था about independent dressing या actually no, routine के बारे में. इस तरह आपका दूसरा सवाल जो आपने कहा था ना कि अभी हम पार्क जा रहे हैं और अभी हमें घर की तरफ वापस आना है, ये कि अम्मी कहाँ पे हैं. Basically, if you put it down in a visual strip, so that would be very helpful as well. तो मेरे पास इधर कुछ examples हैं. I think ये मैंने पहले भी दिखाई थी. तो let me bring this up. Oh, there you are. So I like to follow these routines. हमने ये बहुत follow किए थे. So we have a morning routine, then you can also have a daily routine. Daily routine आप चाहें तो living room के पास लगा दें. Morning routine अगर आप चाहें तो bedroom में लगाएं. और उससे ना ये देखें, आप देखें कि कैसे words are being combined now with visuals. और फिर आप इशारे भी कर रही होंगी और आप बोल भी रही होंगी. तो then it becomes easy for him to understand कि अभी अम्मी कह क्या रही हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है. रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि आपसे जब मिले में लोग गुफ्तगू करते थे तो हाउ यू यूज्ड टू फील. तो ये दिस वुड हेल्प यू राइट इन कम्युनिकेटिंग विद हिम. तो इसको आप बदल सकती हैं इन व्हिचएवर वे यू लाइक. इफ यू वांट टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, इसमें आप इनकी तस्वीरें और इनके कपड़ों की तस्वीरें जो उनकी पर्सनल आइटम्स हों वो लगा सकती हैं. And this is a very easy way to cue them on. मैंने कोई 1-2 साल यूज किए थे. Even when we had language, we used it. क्योंकि उससे एक सीरीज पता चल जाती है.
और लगता तो यही है कि एक ABA स्ट्रैटेजी है, मगर एक्चुअली ABA स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ उनको एक विजुअल सपोर्ट दे रहे हैं कि उनका दिन कैसा लगेगा. ये जो but the pictures, should it be like real pictures of things that he use or places that he go, instead of like pictures that you're showing now? That would be best. Okay. That would be best कि आप जो है real picture use करें, उनकी खुद की करें तो उनके लिए meaningful होगी. वरना यानी कि this is not very interesting to look at, right? ये colorful तो है, लेकिन इसमें किसी बच्चे को क्यों interest होगा? अगर आप उनकी तस्वीरें लगाएंगी जिधर आप उनको नहला रही हैं, या आप उनके बाल ब्रश कर रही हैं, आप उनके बाल ब्रश टीथ कर रही हैं, तो he might even be interested to look at it. तो आपको उनके लिए interesting बनाना है. I'm not sure कि कितने लोग इधर टॉयलेटिंग पे वर्क कर रहे हैं. It's not a topic I am focusing on heavily, लेकिन मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि आपको हर चीज़ के लिए विजुअल्स देने हैं, ताकि जो हम टोकते हैं ना हर वक्त, हाथ नहीं धोए तुमने, हाथ धो, हाथ धो. You want to take away that टोकना, right? This टोकना is not always prompting. Prompting is जब आप दिखा के बात करें कि ये करना है next, फिर next हमें ये करना है, फिर next हमें ये करना है. टोकने में होता ये कि बच्चे फिर they just learn to ignore us and they stop responding, and we don't want that. We want them to listen to us and we want them to follow what we're asking them to do. So try and have as many activity schedules as possible. जितने हों कम नहीं है, ज़्यादा is better. अब जैसे कि मैंने ये किया था, एक IKEA से मिलती है कैबिनेट, या आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, IKEA ज़रूरी नहीं है, और 4 इसके जो है वो drawers थे, and then I labeled them and I velcroed on top of them. Can everyone still see my screen properly? Yes, can. ठीक है, तो ऊपर वाले दराज में मैंने स्लीपिंग क्लोथ्स रखे थे, इधर मैंने सारी शर्ट्स रखी, पैंट्स, अंडरवेयर्स एंड सॉक्स. अब उससे होता ये कि स्कूल रेडीनेस के लिए भी दिस इज एन एक्सीलेंट स्किल, प्रॉम्प्टिंग के लिए भी इट्स एक्सीलेंट. और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि लैंग्वेज हमारे बच्चों के लिए डिफिकल्ट है, तो इमेजिन ये कितना ईजी हो जाता है उनके लिए. देयर वुड बी नो फ्रस्ट्रेशन इन गेटिंग ड्रेस्ड. ना आपको बार बार कहना पड़ेगा, ना उनको फ्रस्ट्रेट होना पड़ेगा. आप उनको चॉइस भी दे सकती हैं, जो कि मेरा एक फेवरेट स्ट्रैटेजी है कि बच्चों को चॉइसेस देनी चाहिए उनकी इंडिपेंडेंस के लिए, राइट? तो आपने जैसे कि दराज खोली, अब यू वांट कि वो अपनी शर्ट खुद सिलेक्ट करें, तो उसके लिए मैं शर्ट्स ऐसे फोल्ड करके रखती हूँ ताकि उनके लिए आसानी हो. तो इट्स फेस अप एंड फोल्डेड थिनली. You can do that with the pants, you can do that with the socks, and they can pull out any color you want. और इससे लैंग्वेज की इंटरेक्शन के लिए भी हेल्प मिलती है. Do you want the Batman shirt today? Or no, the Spider-Man shirt? And then you're pointing to each. Batman or Spider-Man? फिर हाथ में निकाल के Batman or Spider-Man? And you might just touch your hand, but that's still communication. और इधर हम शेयर्ड कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं, जो कि मेरी अगेन बहुत फेवरेट स्ट्रैटेजी है. इमेजिन अगर उनको स्पाइडरमैन वाली शर्ट पसंद आ रही है, स्पाइडरमैन की शर्ट की तरफ वो भर रहे हैं, आपने अपना हाथ हल्का से पीछे किया एंड यू सेड स्पाइडरमैन, तो वो शर्ट यकीनन छीनने की कोशिश करेंगे. तो यू जस्ट डू पार्शियल प्रॉम्प्ट, स्पाइडर, एंड देन ही माइट जस्ट से इट बिकॉज ही वांट्स इट, राइट? तो इस वक्त हमें फोकस इस बात पे करना होगा कि उनकी मोटिवेशन है भी. हो सकता है स्पाइडरमैन में इंटरेस्टेड ही ना हो, बोले मम्मी आप जाएं, हमें बदलने ही नहीं कपड़े ना, हम अपने पजामे में बैठेंगे. तो देन यू हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी. सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू सी इज कि क्या वो इंटरेस्टेड हैं, क्या वो मोटिवेटेड हैं, क्या उनको वो आइटम चाहिए है जो आप उनको ऑफर कर रही हैं. इफ यस, देन यू कैन यूज अ शेयर्ड कंट्रोल. शेयर्ड कंट्रोल इज लिटरली जस्ट लाइक आई एम होल्डिंग ऑन टू दिस इज माइन, मैं नहीं दे रही, राइट? मैं फ्रस्ट्रेट नहीं करूंगी. अगर वो खींचेंगे, आई विल जेंटली होल्ड ऑन टू इट एंड देन आई विल गिव हिम अ प्रॉम्प्ट. अगर उन्होंने उसका सिर्फ एक छोटा सा वर्ड भी निकाला, सिलेबल भी निकाला, मेरी तरफ देखा भी, तो मैं फौरन दे दूंगी, क्योंकि आई वांट टू रिवॉर्ड देम लुकिंग एट मी. मगर यू सी हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ABA. ABA के अंदर इज लाइक कि मैं कोई एडिशनल एडिबल दूंगी, या मैं चॉकलेट दूंगी, या मैं गमी दूंगी, और मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही. मेरी रोजमर्रा की जिंदगी इज रीइंफोर्सिंग. मैंने कहा बेटा तुम्हें स्पाइडरमैन की शर्ट पहननी है, बैटमैन की पहननी है, मैंने इधर ही लैंग्वेज गोल अटैच कर दिया, शेयर्ड कंट्रोल के थ्रू उनसे लैंग्वेज निकलवा ली. There it is, you wear your Batman shirt and yay, hugs, kisses and praise. So this is how we use it in a daily setting
every day. So that's one thing. Any questions on this? आज सब बहुत खामोश हैं, लगता है सैटरडे सिर्फ मैं मना रही हूँ। नहीं, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, जैसे आपने लेबलाइज करके शर्ट्स वगैरह रख दी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पर्टिकुलर होते हैं चॉइसेस चीजों को लेके कि उनकी चीज वहीं पे पड़ी हो। आपने कभी ऐसे ट्राई किया है कि लाइक स्विच कर दे, शर्ट्स को अंडरवेयर वाले सेक्शन में रखते हैं और वो वाली चीजें जो पैंट्स में रखते हैं, तो उससे अगर इन केस अगर जो बच्चे हैं उस पे रिएक्ट करते हैं तो उनके लिए क्या सजेशन होना चाहिए आपका? जस्ट इसको देख के मुझे एकदम से थॉट आई है। सॉरी। आपका सवाल सही है अबाउट रिजिडिटी। आई थिंक आप जो वो करना चाह रही हैं वो रिजिडिटी करना चाह रही हैं एड्रेस। इधर जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि आप एक सीक्वेंस में तैयार होते हैं, राइट? आपने अपने नाइट टाइम क्लोथ्स ऊपर फोल्ड करके रख दिए, फिर आपने अपनी शर्ट निकाली, पैंट्स निकाले, underwear or socks nikali, and then you're ready to get dressed. So it becomes almost like a visual. As you can see, shirt is on top, pants are at the bottom, socks are almost at the very end. Rigidity address करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम discreet हों। अगर मैं अभी जाऊं उनके पैंट्स और शर्ट्स अपसाइड डाउन कर दूं, तो इवन अगर कोई मेरी अलमारी में आके मेरी अलमारी की हालत बिगाड़ दे तो मैं बहुत परेशान होंगी, मैं बहुत गुस्सा करूंगी। और मगर मैं तो आर्टिस्टिक नहीं हूँ, तो वी वांट टू बी माइंडफुल ऑफ देयर एनवायरनमेंट एज वेल। आप यकीनन उनकी रिजिडिटी पे काम करें, लेकिन इतने डायरेक्टली नहीं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट हो गया, आपको थोड़ा इनडायरेक्ट होना पड़ेगा। जैसे कि मैं इस पूरी जो अलमारी है उसको मैं 2 फीट मूव कर दूंगी, राइट? सो नाउ आई हैव मूव्ड इट फ्रॉम इट्स प्लेस। उनको ये पता है कि ओ ये तो मेरे बिस्तर के पीछे होती थी, लेकिन अब ये मेरे सिरहाने की तरफ है, तो ये तो अम्मी ने बदल दिया, तो ही विल जस्ट डील विद दैट। लेकिन मैंने अभी तक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन उसकी नहीं चेंज की होगी। ही कैन स्टिल गो थ्रू हिज मोशंस ऑफ इधर सारी शर्ट्स हैं, इधर सारे पैंट्स हैं, लेकिन मेरी अलमारी की पोजीशन बदल गई है। तो यू वांट टू ब्रेक दैट डाउन अ लिटिल बिट, क्योंकि हम उनको फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहते। वी जस्ट वांट टू डिसेंसिटाइज देम, उनकी रिजिडिटी पे काम करना चाहते हैं। और सेकेंडली ये कि यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि इस चीज़ का जो आपने अभी मेंशन किया उसका फंक्शन क्या है। मेरे नज़दीक तो दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, हो सकता है कि उनके लिए भी इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ वर्किंग ऑन रिजिडिटी, बट यू हैव टू नो व्हाट यू आर वर्किंग ऑन। क्योंकि ओके, सो लेट्स पुट इट दिस वे, जैसे कि मैंने अभी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था अबाउट माई सन एंड ही इज़ वेरी रिजिड अबाउट हिज ट्रांजिशंस, राइट? इधर विंटर आता है, इतना खौफनाक विंटर होता है, इधर पैंट्स पहनो, जैकेट की 2 लेयर्स, हाथों में ग्लव्स, स्कार्फ, और फिर हैट, लाइक द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। फिर इंडोर शूज अलग हैं, आउटडोर शूज अलग हैं, इंडोर कपड़े भी अलग होते हैं। तो इट्स अ लॉट ऑफ ट्रांजिशंस फॉर आवर किड्स एक्चुअली। एंड मेरे बेटे को पूरा समर लग जाता है अपनी विंटर की क्लोथ्स शेड करने में, बिकॉज ही इज लाइक कि नहीं मैं तो 6 महीने से ये पहनता आ रहा हूँ, मैं अभी कैसे ओवरनाइट अपने कपड़े चेंज कर लूँ। तो दैट्स अ रिजिडिटी दैट वी वांट टू वर्क ऑन, राइट? नाउ वी नो कि एक रिजिडिटी है। अब मैं पहले से काम शुरू कर देती हूँ, पहले मैं मिटन्स घुमा देती हूँ, फिर मैं बूट्स घुमा देती हूँ, एंड आई एम ब्रेकिंग ऑन द रिजिडिटी, बट वन एट अ टाइम। So slowly I'm warming him up to the idea कि नहीं देखो बेटा, अब सन निकल आया है, सीजन्स क्या होते हैं, पूरी एक स्टोरी टेलिंग भी साथ में चल रही है कि ओके सीजन चेंज हुआ है, पहले कलर्स कुछ और थे, अब कलर्स कुछ और हैं, पहले विंटर था, स्नो पड़ रही थी, अब धूप निकली हुई है, एंड देन धूप में हम ये पहनते हैं, बीच में हम जाते हैं तो ये पहनते हैं, और विंटर खत्म हो गया, विंटर क्लोथ्स को फोल्ड करके ओके बाय, विल सी यू नेक्स्ट विंटर। So you just have to work on the rigidity. All of this is working on the rigidity, but it's not directly working on it. It's indirectly working on it. Did that answer your question? Okay, awesome. So let's move on. So, I have one question, Batul, for choices. So I have tried with puzzles. So, okay, Ibrahim, I have these 2 puzzles. Which one do you want? So he will either look or he will take, or sometimes he will even point. But then for other things like clothes, he seems not so interested. Or if the child doesn't make, if even after you give choice, there is no response from the child, then what can we do? well, he's not interested. We have to follow his interest, remember? Yeah. He's not interested. Better find nicer shirts for him.
Okay. Or just stick to things that he is interested, like puzzles or toys. Yeah. So puzzles ke andar, just remember not to ask open-ended questions, right? So you don't want to be asking, which one do you want? Because which one do you want is, first of all, it's a which question. It is a question. और कभी कभी हम ये करते हैं, मुझे याद है अपने early days में कि मुझे I used to work with a therapist. They're like, you're asking a lot of questions. मैंने कहा नहीं, मगर how else do we talk? मेरे लिए, मेरे नजदीक सवाल पूछना was so common कि हम सवाल पूछे बगैर काम ही नहीं कर सकते. But that's wrong because it's a demand. आप कोशिश करें, आप comment करें. So imagine you have 2 pieces of puzzle, have a pen and a mouse right now, and you're like, oh, this is a giraffe. Oh my God, giraffe is so tall. And look, this is a lion. He's going to roar, roar. Oh, I'm so scared. Do you want a lion or a giraffe? You see how you broke that down? आपने उनको मदद की कि पूरा process आपने एक तो interesting बनाया, B playful बनाया, C आपने उनके लिए आसान कर दिया. But if I just go like, which one do you want? That's hard because they don't know which one you're referring to as the one. Does that make sense? Yeah, correct, true. Yes. Okay. तो puzzle से हम बच्चों पे कैसे कर सकते हैं कि वो कमेंट करें? हम उन्हें कैसे इस चीज के लिए तैयार कर सकते हैं कि वो भी किसी सिचुएशन पे कमेंट करें? वो सिचुएशन पे कमेंट करें, that will be through model prompting. तो model prompting would be, आप मुझे एक सिनेरियो दें लीना. फॉर इंस्टेंस, अगर मैं अपने बेटे को कोई भी चीज कहूँ जो चीजें फॉलो करेगा, ठीक है, अगर जैसे आपने अभी एग्जांपल दी है कि एक तरफ जिराफ है, एक तरफ लायन है, तो यू आर कमेंटिंग और उसे चॉइसेस दे रहे हो, लेकिन बच्चा अपनी चॉइस का कमेंट नहीं पास करता, ठीक है. इफ ही लाइक समथिंग, ही विल नॉट कमेंट ऑन दिस थिंग कि आई लाइक दिस थिंग, दैट्स व्हाई आई वांट इट, ठीक है. जिस तरह से वो एक होती है ना, अपनी चॉइस को बताना चाह रहा है, तो हम उससे अगर पूछेंगे कि अच्छा आपने ये कौन सी वाली लेनी है, ब्लू कार लेनी है या रेड कार लेनी है, तो उसमें से वो रेड कलर क्योंकि उसका फेवरेट है तो वो चूज करेगा, ठीक है. लेकिन वो खुद से जैसे होता है ना, ये नहीं कहेगा आई वांट दिस कार बिकॉज आई लाइक रेड कलर. तो दिस इज व्हाट आई वांट हिम टू डू, कि वो खुद से बताए कि मुझे ये चीज पसंद है, इस वजह से मैंने ये लेनी है. वो खुद अपना जो है ना कमेंट करे या अपनी फेवर बताए, इस तरह से इस पे कैसे काम करना चाहिए हमें? You're talking about social commenting. The social commenting is very important. हमारे बच्चों में नहीं होती, लेकिन आप वही strategy use करें जिसको हम PRT में use करते हैं, model prompt कह के, तो you will find कि that is more effective. So this is how we do it, and I'll try and get some more videos there for you as well. तो जैसे कि let's imagine a scenario where I'm sitting with, let's say, Lego pieces, right? Lego की figures हैं और बहुत सारे लेगो के फिगर्स हैं, और अब मैं पहले तो मॉडल करना चाहूंगी कि मेरा फेवरेट क्या है. तो I'll pick up the construction man Lego. I'll be like, oh, I picked this one. I like this one. I want to play with this. And then I want him to do the same thing. मगर आपको पता है कि उनको कंस्ट्रक्शन मैन का लेगो नहीं चाहिए, उनको फायरमैन का लेगो चाहिए. तो उन्होंने जाके फायरमैन का लेगो उठा लिया. इधर आपने उनको ब्लॉक करना है, एंड दैट्स कॉल्ड शेयर्ड कंट्रोल. वो फायरमैन का लेगो उठा रहे हैं, आपने उनके हाथ पे हाथ रखा है, लाइक, oh, I want fireman Lego. अब remember कि prompt वही रखिएगा, कोई बहुत लंबा चौड़ा ना हो. If he's comfortable with 3 words, you can use 4. If he's comfortable with 1 word, just use 1 or 2, right? Because you don't want to do double demand. Double demand क्या होगी? मैंने उनका हाथ भी रोका हुआ है, उनको मैं prompt कर रही हूँ, और prompt भी इतना लंबा है कि जो उनसे बोला ना जाए. So you want to make it, you want to set him up for success. So imagine that's a shared control. He's going for the fireman Lego. आपने हाथ पे हाथ रखा. मैं भी example भी दूंगी. आपने देखी भी अलीना. And आपने हाथ पे हाथ रख के कहा कि, oh, mom, I want fireman Lego. I like fireman Lego. या जो कुछ भी. I want to be a fireman. I want fireman Lego. And आपने एक social comment दे के उनको पूरा model prompt उनके हवाले कर दिया कि बेटा ये है prompt, ये appropriate है, ये तुम सोच रहे हो मगर तुमने बोला नहीं है, तो मैं तुमको corresponding words दे रही हूँ कि तुमको ये बोलना चाहिए. And then as soon as he says it or some aspect of it, क्योंकि हो सकता है वो थोड़ा उनका broken हो, so then you give it to him. Great, yes, I like fireman too. Oh, now we have a fireman Lego and a construction man Lego, yay! And then you just keep building on it. अब उनको हो सकता है fire truck पसंद हो
जिसमें आप सोशल कमेंटिंग के डिफरेंट गोल्स अपने दिमाग में प्रिपेयर कर लें कि आपकी कौन सी कमेंटरी होगी. आई लाइक इज अ गुड कॉन्वर्सेशन स्टार्टर. आप ये भी कह सकती हैं कि my favorite is this, and then you're kind of waiting to see if he says what is his favorite. He won't say it, so then फिर आप उनको whisper करके words देंगी. My favorite is the yellow color. It has to be in the setting. तो अगर आप मुझे अपने कुछ videos भेजेंगी तो I'd love to give you some feedback on that. It will be helpful because yeah, it's been very helpful for me to get trained the same way. Sounds good? Okay. So let's see a couple of videos. इधर बात आ रही थी इसरा ने मेंशन किया था इंटरप्रिटेशन की बात. तो लेट मी शो यू हाउ वी डू दैट. इधर मेरे बेटे आई थिंक कोई 3 साल के भी नहीं 2.5 साल के हैं. एंड आई लुकिंग बैक नाउ आई थिंक ही हैड अप्रॉक्सिया क्योंकि उनकी लैंग्वेज बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी. मगर सी हाउ आई एम इंटरप्रेटिंग हिम. उनके लफ्जों को मैं खुद समझ रही हूँ. सो लेट्स टेक अ लुक. Alligator. So see, he's not talking to me. वो मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझसे गुफ्तगू नहीं कर रहे, वो अपने आप से ही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ. तो Isra remember to do that with puzzle pieces. हो सकता है कि हमारे बच्चे बात कर रहे हो, कभी-कभी हम मिस कर जाते हैं उनकी इस क्यू को. It's an ostrich, but it looks like a duck. So you're right. Where's the giraffe? Haha is hippo actually. Yeah, it is a hippo. So he couldn't say a hippo. So he just said haha. But I just translated that. I'm like, yes, it's a hippo. You're right, it's a hippo. But you saw how he looked at me? He's like, acha, okay. My mother was listening to me. So you have to acknowledge and reinforce like this. और उनके ब्रोकन जुमलों को भी अर्ली लैंग्वेज के जो बच्चे हैं जिनकी लैंग्वेज टूटी हुई है आपने रीइंफोर्स करना है. बैबल को रीइंफोर्स करना है, उनकी इंटरप्रिटेशन को रीइंफोर्स करना है. हमारे बच्चों को इस टाइम पर अप्रॉक्सिया होता है. मुझे अभी मैं पलट के सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ आई कैंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग, लेकिन इन द मोमेंट इट मेड सेंस टू मी. ऑलराइट बेबी बॉय. So that's one video. This was when he was at own agenda stage. मेरे पास एक वीडियो और है and this is when he is singing a song. अब देखिए मैं उनके सॉन्ग में इंट्रूड कर रही हूँ कॉन्स्टेंटली क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो सिर्फ अकेले सॉन्ग को गाएं, तो मैं उसमें बार बार इंट्रूड कर रही हूँ. Let's take a look. Mama called the doctor. But do you see how he immediately looked at me? वो तो अकेले अपने गा रहे थे and he was ignoring me. मैं तो थी नहीं वहीं पे. लेकिन the minute I intrude, वो फौरन मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ. And now we have eye contact. Said no more monkeys jumping on the bed. Two jumping on the bed, fell down and bumped his head. Mama called the doctor. No more monkeys jumping on the bed. Yay! So this is also what I call creative stupidity, जिसको हैनन में यूज करते हैं क्योंकि अभी he's not done with his song. अभी तो I think last monkey बाकी है, लेकिन मैंने पहले से cheer कर लिया कि song खत्म हो गया, and he got annoyed because he looked at me and he can't say कि you still have one more left, but he actually motions me, and that's again intentive communication, right? Okay, one is left. One little monkey jumping on the bed. So you can try and do creative stupidity as much as possible. Creative stupidity के अंदर हम क्या करेंगे कि different colors के मोजे पकड़ा देंगे, shoe के साथ boot पहना देंगे और फिर देखेंगे कि reaction क्या आता है, response क्या आता है. इसको हम कहते हैं opportunities create करना, ताकि बच्चों को एहसास हो कि कुछ हटके हुआ है, कुछ different हो रहा है,
वो आपकी तरफ देखें और आप उनको एक लैंग्वेज का गोल दें या आप उनको एक सोशल कमेंट का गोल दे दें, बट बेसिकली दैट वे यू विल बी इंटरेक्टिंग विद देम, राइट? कुछ एग्जांपल्स आप लोग सोच सकते हैं क्रिएटिव स्टुपिडिटी की क्या होंगी? Isra, do you have any suggestions? Okay, I think very similar as well. Poems. Or what else? खाने के टाइम पे स्पून की जगह नाइफ दे देना. उसका तो मैं स्पून भी चेंज करूं तो उसको सब वो नहीं खाता, वो वही स्पून हो जो उसका हो. अगर वो स्पून का कोई डिफरेंट हो तो वो नहीं खाता, तो ये भी है. So if you do that, if you stop, actually change that, आपके हाथ में वाला स्पून हो और आपके हाथ में डिफरेंट स्पून हो, आपने उनको डिफरेंट स्पून दे दिया, आपको पता है उनको वो नहीं चाहिए, तो प्रोटेस्ट करेंगे. लेकिन अब हम फ्रस्ट्रेशन करना चाहेंगे, we will take the spoon that he likes and give him the spoon that he doesn't want. तो obviously वो स्पून को साइड पे फेंकेंगे और बोलेंगे वाला चाहिए, तो वो पकड़ेंगे. You will be like spoon, spoon, partial prompt, and see if he accepts that and just repeats after you. इस वजह से guys imitation skills इतनी important, क्योंकि imitation के बगैर, अब जब हम ये partial prompt दे रहे हैं, अगर बच्चा उस stage पे नहीं है कि वो हमें imitate करे, तो this won't work. इस वजह से we want कि imitation skills हो. Songs are a great way to get imitation skills going. क्या नाम है का turn taking आप कर सकते हैं, चाहे आप लेगो बना रहे हैं कि आप बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहे हैं, कोई भी ऐसा गेम या ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक टर्न आप लें, एक टर्न दूसरा वाला, एंड देन यू कैन इमिटेट देयर जेस्चर्स, उनकी एक्शंस, उनके बॉडी मूवमेंट्स, और वो आपको कॉपी करें, आप उनको कॉपी करें. दैट इज हाउ वी बिल्ड लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज उसके बगैर आ नहीं सकेगी. उसका बिल्डिंग ब्लॉक है इमिटेशन. इसलिए आपके बेटे की इमिटेशन स्किल्स कैसी हैं? इमिटेशन स्किल्स पोएम्स में वो काफी मुझे रिस्पॉन्ड देता है. जैसे जॉनी जॉनी, तो वो जैसे मैं कहती जॉनी जॉनी, he will repeat. Sometimes he would say baba, sometimes he would say ah, but he knows when he has to respond. And same for baby shark to do. He really like whenever he see any shark, any even fish, he would start doing by himself, baba doo doo, baba doo doo. And then same like animals, when we do any animal puzzle, he would make the sound of animal. He can make lion, sheep, rooster, When so you few of animals. Sing baby shark with him, आप जो है उसमें कह रही हैं वो आपके जेस्चर्स इमिटेट करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, एक जेस्चर्स पूरा इमिटेट करते हैं. So you keep working on that. जितनी ज़्यादा strong imitation skill होगी, उतनी ही ज़्यादा आसानी से वो आपका मॉडल प्रॉम्प्ट रिपीट करेंगे. और एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने अपने सारे के सारे जो प्रॉम्प्ट्स का इमिटेशन है, उसका मैंने मोमेंटम बनाया ही सॉन्ग्स के साथ था. वी यूज्ड टू सिंग ऑल द टाइम. Ayan was given screen time at a very early age in his life actually. मैं काम पे जाया करती थी और वो दादा दादी के साथ होता था. दादा दादी काफ़ी मशहूर हैं इन चीज़ों के लिए कि वो स्क्रीन टाइम देते हैं. तो सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा उसके लिए थे. एक कोई घर से बाहर जाने के लिए भी मैं गाना गाती थी जो कि मुझे पता था वो एसोशिएट करता है बाहर की दुनिया से, क्योंकि उधर उस सॉन्ग के अंदर there were references to flowers and trees and kids playing in the park. तो I would sing that song और फिर मैं वो सारे actions कर करके दिखाती थी. It was almost like कि मैंने स्क्रीन टाइम की जिंदगी को रियल लाइफ में ले आई थी. तो it became interesting for him. और वो interested हो गए कि अच्छा ओके, तो ये चीज़ें तो मैं actually recreate कर सकता हूँ. तो I would say कि हाँ, sing a lot. Wheels on the Bus का song हमारे घर में non-stop चलता था, क्योंकि मैं वीडियो पे नहीं चलाना चाहती थी तो मैं ऑडियो पे बजाती थी. मेरे पास डिफरेंट सिलेक्शंस ऑफ स्कूल बसेस थी जो मैं यूज़ करती थी, और मैंने फिर बुक्स भी खरीद ली थी Wheels on the Bus की, because you could then do actions and gestures while reading too. तो उसका डिफरेंट गोल होता था जिस पे हम काम करते थे. तो डेफिनेटली एम्ब्रेस सॉन्ग्स. सॉन्ग से ना घबराएं. जितना वो आपके सॉन्ग्स को रिपीट करेंगे उतना ही आप उनको जो है चीज़ें लैंग्वेज सिखा सकेंगी. ऑल्सो डोंट फॉरगेट फिल इन द ब्लैंक्स, like wheels on the bus go and then be quiet, and he himself will say round and round.
ये आप हर सॉन्ग के साथ कर सकती हैं. Batul, I have noticed for some songs his response is very good. Johnny Johnny he will respond, but like Wheel on the Bus, I will pause many times on the bus. Wheel on the, and then no response. He will just look at me. So I don't know, maybe it depends on type of song or what it is. I don't know. Some song he will repeat, some he will not. Yeah, that's because he's not interested. So we have to follow his. आपने सिर्फ वही चीजें करनी है, लैंग्वेज हमको वहीं से मिलेगी जिन चीजों में वो इंटरेस्टेड है. आप वरना लाख अपनी चीज सिखाती रहें, वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे. अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिखा नहीं सकते. तो वी हैव टू फॉलो देयर इंटरेस्ट. अगर वो व्हील्स ऑन द बस में इंटरेस्टेड नहीं है, फॉरगेट इट. जॉनी जॉनी पे काम करें. अच्छा, इसका सॉल्यूशन कहूँ या एक ट्रिक मेरे पास है, बिकॉज हैदर को भी बहुत पर्टिकुलर था कुछ सॉन्ग्स को लेके. तो मैंने ये चीज रियलाइज की थी, उस वक्त किसी जैसे हमें कोई सॉन्ग अच्छा लगता है तो वी हियर इट टाइम एंड अगेन, ठीक है. तो वो जो मेलोडी होती थी ना, जो टोन थी, उसको मैं उठा लेती थी उस ट्यून को, और उसी पे ही नई चीजों को ब्लेंड करके ना उसी टोन में गाया करते थे हम लोग बहुत ज्यादा. तो उसने कहीं ना कहीं उसको ही स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट. और ये आई नो इट्स वे टू स्टूपिड, लेकिन मैं क्या करती थी, स्पेशली जब हम कहीं पे भी जा रहे, जैसे हम रन अप के लिए जाया करते थे या पैकेजेस मॉल जा रहे हैं या मुख्तलिफ जगहों पे जब जाते थे, गार्डन से, तो उसको रियलाइज कराने के लिए हम किस जगह पे जा रहे हैं, तो मैं उस सॉन्ग को उसी जगह से रिलेट करके जो दिमाग में आता था अपने लिरिक्स बना के उसे मैं आई यूज्ड टू सिंग एंड ही यूज्ड टू लुक एट मी. वो मुझे ध्यान देता था एंड देन ही स्टार्टेड लाइक वो सॉन्ग्स की सूरत से निकल के एक वक्त आया कि वो सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में चला गया था. तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा चीज प्रोडक्टिव हुई थी कि अब बजाय इसके कि मुझे सिंग करके उसे बताना पड़े कि हम रन अप जा रहे हैं, तो ये है. अब शहीरा हंसेगी लेकिन ये है कि ना ही सेज इट इन अ प्रॉपर सेंटेंस और प्रॉपर तरीके से कि हम रन अप जा रहे हैं या कब जाएंगे. तो दैट वाज अ गुड, इट्स अ टिप फॉर यू. आप उस मेलोडी को उठा के तो आप अपना सॉन्ग क्रिएट करें. Absolutely. हम ये चीजें एक्सेलेंट स्ट्रैटेजी. एक्चुअली हम ये बड़े अनकॉन्शियसली चीजें कर रहे होते हैं, कभी कभी हमें पता नहीं होता. अब जैसे कि बाथ टाइम का जो सॉन्ग है कि आई थिंक सुपर सिंपल सॉन्ग्स हैं. आई डोंट नो पाकिस्तान में yes I can wash my hand, I can wash my hair. That washing song, मैं उसको हर जगह यूज करती थी. In washing hands after doing peeing or putting clothes on, I can put my pants on, and then I would just sing and take a melody that he likes, and like what she said, just generalize it all the way, जिस हद तक possible हो. उसमें आप new words introduce कर सकती हैं, new strategies, new words, new places, जिससे बच्चा जो है वो एक तो चौंकता भी है, तो आपको लैंग्वेज अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उनके लिए वो रिदम फेमिलियर होती है, तो उनके लिए वर्ड्स आसान हो जाते हैं. Awesome strategy, I love it. किसी के और इधर कोई सवाल हैं? Because I want to then go into some examples of shared control and then we will just wrap up. अच्छा बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन है. अभी जब से मैं प्रैक्टिस में हूँ, मैंने चंद बच्चे ऐसे भी देखे हैं स्पेक्ट्रम में जो बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं करते, लाइक जीरो कम्युनिकेशन. ना वो आई कांटेक्ट बाज़ औक़ात दे देते हैं जब उनकी कोई ज़रूरत हो, जिस तरह मोस्टली उनको कुछ खाने को चाहिए, पर वो कम्युनिकेट नहीं करते आपके साथ, मतलब अल्फाज से. मेरे पास एक स्टूडेंट थी, जब मैं बिल्कुल नई प्रैक्टिस में आई तो मुझे कहा गया कि ये नहीं बोलती, तो आई वाज लाइक अच्छा. तो मैं उसके साथ ट्विंकल करती थी, तो इंटरेस्टिंग लेती थी. मैं ट्विंकल से वर्ड्स को गायब कर दिया और सिर्फ उसके म्यूजिक को करती थी, तो उसने वो रिपीट करना शुरू कर दिया. तो दैट आई रियलाइज कि वो बच्चे जो पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता बाहर कैसे कैटर करते हैं, पर वो बच्चे जो बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करते, उन पे एक हद तक काम करने के बाद रोक दिया जाता है ये कह के कि ये नहीं बोल सकते. सो माय क्वेश्चन इज, क्या वो वाकई बोल नहीं सकते, या हम उनके उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाए जहाँ से हम उनकी कम्युनिकेशन को या उनकी लैंग्वेज को बाहर निकाल सकते हैं? So that's a great question. To be honest with you, इसका कोई एक जवाब नहीं है. इसके काफ़ी सारे डिफरेंट सिनेरियोज हैं, लेकिन आपको अपनी थोड़ी बेटर जजमेंट भी यूज़ करनी पड़ेगी. जब हमारे बच्चे बोल नहीं सकते तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एज देखना होती है, राइट? क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी का उसूल ये है कि हमारा ब्रेन हील हो सकता है और हमारा ब्रेन जो है वो बदल सकता है.
तो इट डजंट मैटर कि बच्चा अगर 10 साल का भी नॉन वर्बल है, वो वर्बल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रेन बदल सकता है। इशू ये है कि काम कितना करना पड़ेगा। इट्स हार्डर बिकॉज ब्रेन जो है वो ऐसे बना हुआ है कि उसको रेपिटेशन पसंद है, तो रिपेटिटिव नेचर है हमारे ब्रेन की, तो जो चीज़ हम रोज 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 करेंगे ब्रेन उसमें स्ट्रांग होता जाता है। देखो कोई बच्चा नॉन वर्बल है 10 साल की उम्र में, आई एम नॉट श्योर कि आपकी इस लड़की की उम्र, बच्ची की उम्र क्या है, तो अगर तो वो अंडर 5 है तो देन इट्स वी कैन मोल्ड इट क्विकर, लेकिन अगर वो ओवर द लाइन है तो इट्स हार्डर, राइट? नॉट इम्पॉसिबल, जस्ट हार्डर। हार्डर मतलब मोर इंटरवेंशंस आर नीडेड, आपको बायोमेड भी की जरूरत है, आपको डाइट इंटरवेंशन भी चाहिए, आपको ओटी के लिए आई एम लविंग जी वाइब इज ग्रेट। मेरे पास एक और टूल है जो मैं आजकल रिव्यू कर रही हूँ, आई लेट यू गाइस नो अबाउट इट। यू बेसिकली रियली मसाज ऑल द ओरल मसल्स ओवर हियर, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो उनको अप्राक्सिया है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू है जिस वजह से वो नहीं अटर करना चाह रहे, ये कि कोई एक्चुअल ओरल मोटर इशू है जो कि इतना स्ट्रांग है जिसकी वजह से उनकी मसल्स इतनी वीक हैं कि वो वर्ड्स बना ही नहीं सकते। बट इफ शी कैन हम, then you know that she has a voice, her vocal cords are okay, it could be an oral motor issue। और secondly बहुत सारे नॉन वर्बल बच्चे ऐसे हैं जो कि बोलना ही नहीं चाहते, तो you know इधर well overseas over here इधर नॉन वर्बल ऑथर्स भी हैं जिन्होंने किताबें लिख ली हैं, तो ये नहीं है कि वो सोच नहीं सकते, वो बस बोलना नहीं चाहते, you know। तो वो अपने ACSD के उससे कम्युनिकेट करते हैं, असिस्टिव कम्युनिकेटिव डिवाइस से। तो ऑब्वियसली हम एज पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का ये फ्यूचर हो, तो वी वांट टू कैच देम एज सून एज पॉसिबल, we want to work on these things as soon as possible। तो I think for the example that you're giving, उसमें ये review करने की ज़रूरत है कि क्या oral motors एक issue है, should we work on that? Primitive reflexes के लिए हमें work करना चाहिए, because इतना तो पता है कि she has imitation skills। तो अगर imitation skills मौजूद हैं तो then she is capable of imitating language as well। We just have to make it easy for her। बतूल, यहाँ पे मेरा भी क्वेश्चन आएगा। जैसे आप ये आपने बताया, मैंने भी अपने बेटे के साथ जैसे वो सारी चीजें की थी, बबल वाली, पॉप द बबल, जैसा आप कह रही थी कि इवन अगर वो पॉप नहीं बोल पा रहा है तो प की साउंड भी निकाल सकता है। तो जो मैंने आपको बताया था कि वो पोएम्स को जो है ना ही एंजॉयज वेरी मच, तो हम क्लैप योर हैंड्स गाते हैं उसके साथ, क्लैप योर हैंड्स, क्लैप योर नीज। अच्छा, आज मिरर प्ले मैंने उसके साथ स्टार्ट किया था, तो मिरर के सामने खड़े होके so he was doing himself के clap your hands, वो अपने हाथ clap कर रहा था और and करके he was singing the song and then he tapped his knees। तो वो कर रहा था, लेकिन उसने अब तक कोई वर्ड बोला नहीं है। मामा और डैडी बोलने की भी मैं बहुत कोशिश करवाती हूँ, मगर उसने अभी तक ड भी नहीं बोला। लाइक ना, वो वैसे मामा 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 करता रहेगा, बट जब मैं बोलूंगी आहट मामा तो वो he will never speak up, या पॉप द बबल, या वो जो मैं उसको क्यू भी देती हूँ इवन, तो भी वो नहीं बोलता है। तो वो यही इशू हो सकता है क्या ओरल मोटर, जैसे भी आप बता रहे हो? ओरल मोटर भी हो सकता है, वो तो बहुत छोटा है। या छोटे भी हैं और उनको मोटर इश्यूज, या वी कैन हियर यू मदीहा, कि वो छोटे भी हैं आपके बेटे और आपके बेटे को ग्रोस मोटर इश्यूज भी हैं, तो हो सकता है कि ओरल मोटर भी कोई उनका वीक हो। बट what you'd like to also explore is कि क्या उनकी imitation skills हैं, क्योंकि imitation skills will be what's needed कि आप जब बोलें ड या डैडी तो वो साथ में आगे से इस चीज़ को बोल सकें। तो you have to still work on imitation skills। और mirror का जो strategy मैंने आपको बताई थी, that's actually one of my favorites because बच्चों के लिए इतना आसान हो जाता है। एक तो बच्चों को mirror में देखना पसंद है, मेरे बेटे ने तो बहुत टाइम मिरर के सामने गुजारा था। एक्चुअली जब हम थेरेपी किया करते थे हमें मिरर के ऊपर एक चादर डालनी पड़ती थी बिकॉज वील स्पेंड द एंटायर टाइम इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, मगर देयर इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग। तो आप जो है वो मिरर के आगे बैठ के खेल सकती हैं। बच्चों को इमिटेट करना इतना आसान होता है, और स्पेशली जो हैंड जेस्चर के मूवमेंट्स हैं कि हेड, शोल्डर, नीज एंड टोस, यू कैन डू इट ऑन हिज बॉडी, और उनके हाथों को खुद पकड़ के आप मूव कर सकती हैं। In time आप अपने हाथों को फेड कर लेंगी and he will just use his own hands and you ये मैं करती हूँ, you do that I do with him। yeah, so you have to keep doing but you have to fade back to see कि वो खुद से imitate करेंगे। अगर आप सिर्फ गाएं, तो मैं आपको ये बताई थी कि जब मैं उसके साथ आज मैंने
Madhya, I can't hear you. जी वो हेलो हाँ बोले, अब बोले। मैं कह रही हूँ कि आज मैंने उसको सिर्फ शीशे के सामने खड़ा किया था और मैंने कुछ कहा नहीं था, एंड ही स्टार्टेड डूइंग बाय हिमसेल्फ। एंड मुझे पता तब चला जब वो मुस्कुरा मुस्कुरा के उसने टैप योर नीज भी किया। शोल्डर्स तक उसके हाथ नहीं जा पाते खुद से, तो टैप योर नीज करके दोबारा से उसने हाथ क्लैपिंग करना शुरू कर दी। तो उस थोड़ी सी आवाज आपकी बार मुझे अंदाजा, और ही वाज सिंगिंग। या ओके, सो आई गेट इट। सवाल मेरा ये है कि वो आपको इमिटेट करेंगे? इन अ स्पेसिफिक टोन। It sounds like he's doing it himself. तो क्या वो आपको भी imitate करेंगे? अगर आप उनके साथ बैठी हुई कर रही हो तो would he just imitate you? जी क्या अगर आप उनके साथ बैठ के यही gestures कर रही हो would he imitate you? Not on that specific point. जब मैं पूरा खत्म कर लूंगी उसके बाद वो करता है। Yeah. Imitation has to happen parallel. तो अगर मैं अपना सर खुजा रही हूँ तो वो अपना सर खुजाएं, मैं क्लैप कर रही हूँ तो वो क्लैप करें। It has to happen in parallel. Belated का मतलब है कि वो सीख तो रहे हैं लेकिन वो आपको उस वक्त इन टाइम कॉपी नहीं कर रहे। तो अगेन लैंग्वेज के ऊपर हम अभी काम नहीं कर सकते जब तक वी डोंट हैव दैट स्किल इन प्लेस। बोल सकती हैं आप, यू कैन कंटिन्यू डूइंग थिंग्स विद हिम। जैसे कि मुझे पता है उनको बॉल बहुत पसंद है, तो आप बॉल इज एक्चुअली इज रिलेटिवली इजियर एज वेल, तो आप बॉल के ऊपर काम कर सकती हैं। बॉल बॉल, अगर वो सिर्फ ब भी बोलें तो यू दैट्स स्टिल लैंग्वेज। जी वो ब भी नहीं। सॉरी मध्या, आपकी आवाज बहुत कट रही है, मुझे नहीं बोल पाता ना, तो उस वजह से मैंने कहा कि शायद कोई ऐसा मसला तो नहीं है। आपका कनेक्शन थोड़ा वीक है ना, तो उधर नहीं आ रही है, आवाज कट रही है बहुत। Let me come back to your question. Hopefully it will improve. We still have a few minutes. मुझे कुछ videos भी आप लोगों को दिखानी। So let's do that. Okay, so this was a video. Can I ask a question, Batul? Yeah, go right ahead, Mariam. अच्छा बतूल, आपकी कल की बहुत सारी कन्वर्सेशन और आज की जाहिर बात है मैंने उसको सुना भी, और माशाल्लाह से आपने जो कुछ एडवाइसेस इसरा को और मदीहा को आप दे रही है, उससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि मैं पिछले 1 साल में अपने बेटे के साथ इन बहुत सारी चीजों पर कुछ कॉन्शियसली, कुछ अनकॉन्शियसली, कुछ मालूम होते हुए, कुछ खुद से अपनी इंट्यूशन इस्तेमाल करते हुए इन चीजों पे इसी तरीके से काम करती रही हूँ, और अल्लाह का करम है कि अचीवमेंट्स भी हैं, शुक्र खुदा का। मैं अब लेकिन ये है कि मेरा बेटा सर 4 साल 8 माह का है। अगर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल नॉन वर्बल है तो अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं है। वोकैबुलरी उनकी बेतहाशा है। उनके पास अगर मैं एक अंदाजन रफ एस्टिमेट भी लगाऊं तो 200 प्लस उसकी वोकैबुलरी है माशाल्लाह। और जी माशाल्लाह से। अच्छा, उसका मैं इस स्टेज पर हूँ कि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे कुछ लोगों ने उसे ऑब्जर्व करने के बाद, एक रफ ऑब्जर्वेशन के बाद, कुछ उससे हाइपरलेक्सिया की तरफ भी कहा है, क्योंकि वो अब ये करने लगा है पिछले 6 माह में कि पहले तो वो चीजों को सुन के सीखता था, अब वो क्या करने लगा है, मसलन के वर्ड्स लिखे हुए हैं तो वो लिखे हुए वर्ड्स को भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। माशाल्लाह। अच्छा, और फिर अब जो ये हुआ था पिछले 6 माह में कि अगर ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, राइनोसॉरस लिखा हुआ है, और इस तरह मैं अगर आपको कहूँ तो वो तकरीबन 200-250 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि रिटन फॉर्म में रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये वर्ड क्या लिखा हुआ है। ये चीज उसने ना सिर्फ किताबों में, बल्कि मैंने ये महसूस किया जब हम कहीं जा रहे हैं, और अगर फॉर एग्जाम्पल वो एक शॉप में गया तो मैं हैरान रह गई ये देखकर। ये गया वहां और इसने उंगली रखकर कहा ब्लू वेल, और वहां ब्लू वेल ही लिखा हुआ था। Amazing. अच्छा, अब उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि वो स्पेलिंग्स में आ गया है। अब मतलब सारा दिन उसका ये होता है CAKE केक, CAT कैट, WHALE वेल, मतलब अब वो इस स्टेज पर आ गया है। ये सब कुछ है। मतलब मैं अगर बहुत खुश हूं और उछलूं इस बात पर कि मेरा बच्चा एकेडमिक्स वाइज एक 4 साल 8 माह के बच्चे से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो उसकी प्री राइटिंग स्किल्स अभी इतनी पक्की नहीं है, लेकिन वो
मतलब अगर टीचर्स के नहीं भाई, वो तो कहें जी 5 साल का बच्चा, हमारे यहाँ तो इतना बड़ा वर्ड नहीं पढ़ सकता। मतलब मैं ना एक अजीब सी उसमें हूँ। अगर मैं दूसरी तरफ आऊं तो वो फंक्शनल अभी भी नहीं है। मतलब अभी भी उसने मुझसे पानी, मर्जी हो तो पानी, मर्जी हो तो वाटर, क्योंकि वर्ड्स तो है ना, वरना वही के मतलब मामा को ड्रैग करके ले जाना और पॉइंटिंग और चीज का तलब करना, यानी वो एक्सप्रेशन वर्ड्स की सूरत में नहीं है और फंक्शनल अभी भी। मैं उस हवाले से अभी भी मुझे कहीं से ना कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि मैं अभी जहां हूं इस वक्त, उससे मैं आगे कैसे बढ़ूं या इसको मैं आगे कैसे लेके चलूं। ग्रेट क्वेश्चन मरियम, और मुझे लग रहा है कि आपने मेरे बेटे को डिस्क्राइब कर दिया। माय सन वाज लाइक दिस टू। वो स्पेलिंग्स में बहुत ज्यादा फॉरवर्ड, आज के दिन तक भी स्पेलिंग इज द फर्स्ट थिंग दैट ही डज। और एक टाइम ये हमारे साथ भी हुआ था कि स्पेलिंग्स में इतना ज्यादा वो जिसे कहते हैं फिक्सेट हो जाते हैं। आप ये देखेंगे कि हमारे बच्चों की फिक्सेशंस होती हैं और फिक्सेशंस रैपिडली चेंज होती हैं। अभी वो पिछले 6 महीने से स्पेलिंग्स पे काम कर रहे हैं, हो सकता है वो नंबर्स पे आ जाएं। पहले किसी टाइम पे हम अल्फाबेट्स पे भी थे, बीच में शेप्स भी आए थे। इट चेंजेस ऑल द टाइम। आजकल हम एनिमल्स, इतने मुश्किल एनिमल्स और डायनासोर्स के नाम घर में याद हो रहे हैं। मुझे यकीन करें कितने एनिमल है दुनिया में, कितने ऐसे थे, मुझे बहुत सारे जॉन से पता चले। मैं बाज़ दफा सोचती थी कि इतने तो मुझे भी नहीं पता जितने तुम्हें पता है। एग्जैक्टली। सी एनिमल्स, बर्ड्स, मैं कह रही हूँ वेजिटेबल्स, ब्रोकली, मतलब इतना आसान नहीं होता। मतलब मैं हैरान हो जाती, मेरी बच्चियां बाज़ दफा हैरान हो जाती थी। वन इज 9 years old and 1 is 7 years old। मामा ये सारे वर्ड्स तो हम भी बाज़ दफा नहीं पढ़ पाते हैं और ये जॉन पढ़ लेता है। ये हमारे बच्चों की कैपेबिलिटी है, क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर ये स्किल्स मौजूद हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे बेटे ने इस दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उनके तमाम तर फ्लैग्स हिफ्स कर लिए हैं। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग टू मेमोराइज। और वो बाय मेमोरी फ्लैग्स को कलर कर सकते हैं, उनके सारे उनको कंट्रीज के नाम पता है विद द स्पेलिंग। तो ये गिफ्ट्स हैं और उनको हमें सेलिब्रेट करने की जरूरत है। लेकिन अब हमें सिर्फ फंक्शनल कैसे बनाना है। देखिए, आपने मुझे एक वक्त में 4 चीजें बताई हैं जिनमें आपका बेटा इंटरेस्टेड है, तो मैं तो जल्दी से उस चीज की लिस्ट बना लूं कि अच्छा दीज आर द थिंग्स ही लाइक्स टू डू। अब आपको उनका इंटरेस्ट इंक्लूड करके उसके अंदर सोशल गोल्स, सोशल कमेंटिंग, रिक्वेस्टिंग, ये वाली चीजें ऐड करनी है, तो वो तो फिर भी आसान हो जाएंगी। लेकिन जस्ट डू व्हाट ही इज इंटरेस्टेड इन। जैसे कि फॉर इंस्टेंस उनको अल्फाबेट्स पसंद है, मे बी यू कैन गेट लॉट्स ऑफ मैग्नेट वाले जो अल्फाबेट्स होता है, राइट? और आप उनके साथ बैठ के जो है वो बनाएं CAT, कैट, राइट? अब इधर इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि आप उनको सिर्फ C और A देंगी, T नहीं देंगी। T आप छुपा लेंगे अपनी नीचे, आप बोलेंगी ओह where is T, and then he will obviously be looking at it and he'll be asking you, he might tug you and pull you or look at you and make a face. Immediately आप उनको shared control के साथ बोलेंगी T, oh look I found T, it was under me। अब वो T की तरफ भरेंगे, आप बोलेंगी give T please, क्योंकि आपने कहा उनके पास लैंग्वेज है लेकिन उसको फंक्शनली यूज करना नहीं आता। फंक्शनली यूज नहीं कर, जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप उनके साथ बैठ के वर्ड गेम्स बनाएं, रोज बनाएं। अच्छा, अभी 1-2 दिन से कुछ ऐसा भी होना शुरू हुआ है जो मैंने महसूस करना शुरू किया कि जैसे एक्सप्रेशंस, अब जैसे कि मुझसे कहना शुरू करेंगे हैप्पी, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं वो फेस बनाऊं कि अच्छा, फिर कहेंगे सैड, एक सीरीज है, फिर कहेंगे एंग्री, फिर कहेंगे स्केयर्ड, मतलब अपने खास अंदाज में ना। और एक्सपेक्टेशन होती है कि मामा बनाए वो। फिर जब मैं कहूंगी जॉन नाउ इट्स योर टर्न, तो जॉन ने इतना कोई खास इंप्रेशन नहीं करना, उनका फोकस होता है कि मामा सारे काम, ये जो प्ले वाला टाइम है चूंकि वो मेरे साथ ज्यादा होता है, तो वो ये होता है कि मामा इज द रोल मॉडल एंड मामा इज द वन हु लिमिटेड। तो वो जो उनकी टर्न होती है उसमें फिर वो नहीं करते हैं ये चीज। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर मतलब मैं हैप्पी पे हैप्पी बनाऊंगी ना, नहीं नोज कि मामा ने अगर हैप्पी पे सैड बना दिया देन ही विल कंटिन्यूअसली से हैप्पी हैप्पी जब तक मैं हैप्पी फेस नहीं बनाऊंगी। अच्छा, फिर इस तरह से कुछ अपनी डेली रूटीन में भी क्या करना शुरू किया है कि जैसे किसी बात पे नाराज हो गए हैं या अगर मैं किसी बात से उन्हें मना कर रही हूँ, जैसे विंडोज खोलने का आजकल बहुत ज्यादा शौक हुआ हुआ है, घर की कोई विंडो बंद ना रहे, तो अगर मैं कहूंगी नहीं जॉन फ्लाइज आ रही हैं वी हैव टू क्लोज इट,
और वो उनके मतलब की बात नहीं है, तो what he'll say, sad and his voice tone will also go down. तो मुझे लगता है मे बी ये इस चीज को अब समझने भी लगा है कि हाँ अपनी उस चीज का इजहार इस तरह, या आज बड़ा इन्होंने स्पॉन्टेनियसली किया. when I was I didn't tell him, and usually when I take him for a bath मैं कहती हूँ John it's time to go for a bath. इन्होंने खुद ही ना, मैंने कहा okay let's take off your shirt, तो इसने एकदम से मुझसे बोला bath, मतलब he knows that. So I think Badul, I want to know, am I going on the right track or am I missing some? You're going on the right track. because जो मुझे ये लग रहा है वो ये कि इस वक्त अपनी डेवलपमेंट वो खुद लीड कर रहे हैं. इधर आपको थोड़ा सा एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि उनको नेक्स्ट किस चीज की जरूरत है. अब जैसे कि अगर आपने कहा कि बाथ टाइम के टाइम पे आपने कहा लेट्स टेक योर शर्ट ऑफ और उन्होंने कहा बाथ, अगर इस वक्त आपके पास एक एक्टिविटी स्केड्यूल होता या कोई विजुअल सपोर्ट होती तो आप सिर्फ बात नहीं कहती, आप कहती यस फर्स्ट वील डू बाथ देन वील हैव डिनर और यू नो यू विल हैव मिल्क और समथिंग. आप एक कॉन्वर्सेशन डेवलप कर लेती. हमें जरूरत ये है कि हम अपने बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशंस करें, राइट, लेकिन इन अ वे दैट दे अंडरस्टैंड. तो हम क्या करते हैं, इमेजिन यू आर एन आर्टिस्ट, राइट, आपके सामने एक ब्लैंक कैनवस है, बच्चा ब्लैंक कैनवस देख रहा है, अब आपने उसके अंदर पूरी ड्राइंग करके बतानी है कि देख क्या रहा है. तो दैट्स योर रोल, राइट. आप नरेटर हैं, आप स्टोरी टेलर हैं, आप क्रिएटर हैं, आप थेरेपिस्ट हैं, आप ही फ्रेंड हैं. तो जैसे कि आपने ये वाली एग्जाम्पल दी कि वो आपसे कहते हैं हैप्पी, तो सिर्फ एक वर्ड कहते हैं हैप्पी और आप हैप्पी फेस बनाए थे. टेक दैट अपॉर्चुनिटी, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसे यूज करें. मेक सम विजुअल्स जिसमें हैप्पी फेस सैड फेस हो. अब यू कैन टर्न इट इनटू अ गेम. when he gives you a happy face then you make a happy face, when he gives you a sad face you make a sad face. ठीक है, मगर सिर्फ गिव नहीं करना, अब उसके साथ में आपने एक लैंग्वेज गोल भी अटैच करना है. मॉम मेक हैप्पी, उन्होंने हैप्पी का विजुअल पकड़ा हुआ है, मेक हैप्पी. आप तब तक हैप्पी फेस नहीं बनाएंगी जब तक वो ये नहीं कहते मेक हैप्पी. एंड नाउ इट हैज टर्न्ड इनटू अ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन. सही, ठीक है, सही है, करेक्ट, राइट. Thank you. No problem. So let me give you some more examples of shared control. आज हमने shared control के बारे में काफी गुफ्तगू की है. And I know we've gone a little bit over time, लेकिन मैं conversation का रोकना नहीं चाहती. अब मैं अपने बेटे के साथ खेल रही हूँ. मैंने अभी तक imitation skills पे काफी काम कर लिया है, तो ये follow करना निस्बतन आसान है. मैंने हाथ में ब्लॉक पकड़ा हुआ था. I don't know आवाज सही से आ रही है कि नहीं. मैंने हाथ में ब्लॉक पकड़ा था and I didn't give it until he said, I gave him a prompt. I said more blocks and he said more blocks. तो मैंने उनको blocks दिया. More blocks. अब उनको ऑलरेडी पता चल गया था कि मैं किस तरफ जा रही हूँ, तो उन्होंने मुझको बीट करके खुद ही कह दिया more blocks. But that's what we want them to do, कि उन्होंने ये गोल ऑलरेडी मास्टर कर लिया. More blocks from my tower. More blocks from my tower. तो मैंने जल्दी से गोल चेंज कर दिया ना ऑन द गो, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि मोर ब्लॉक्स तो उन्होंने मास्टर कर लिया. मैंने लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेट कर दी. मोर ब्लॉक्स फ्रॉम माय टावर, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. ही वाज ओके, आई कैन डू दिस वन. More blocks from my tower. Yeah. Okay. Then keep going. Shall we keep going? Yes. कैमरे को देख के बहुत एक्साइटेड है. More blocks from my giant's tower. More blocks from my giant's tower. अब इधर आई लॉस्ट माय शेयर्ड कंट्रोल, क्योंकि उन्होंने हाथ से पकड़ के इतने जोर से खींचा तो खुद ही पीछे गिर गए. बट आई लॉस्ट माय शेयर्ड कंट्रोल, बट ही स्टिल रिस्पोंडेड. More blocks from my giant's tower. Nice work, buddy. Do you want to go higher or shall we crash the car now? More higher. More higher. So that's how we use shared control. And this is like an example that you can use in your daily setting, especially for those kids जिनके पास words already आ गए हैं. जिन बच्चों के words अभी नहीं है, वो थोड़े pre-verbal stage पे चढ़ने से, इस तरह आपका बेटा अभी सिर्फ single words use कर रहा है, तो आप इतने बड़े बड़े prompts नहीं देंगी. You will just continue with b for ball या give या इस किस्म की language जो कि उनके लिए easy हो और functional हो. एक एग्जाम्पल मेरे पास और है जो मैं दिखाना चाह रही थी, and I think this might be helpful for you, Maryam, because you said कि he
is showing signs of hyperlexia, as in he can read. तो reading को आप एक play time activity में भी बना सकती हैं to make it meaningful. इधर मैं दूसरी strategy use कर रही हूँ जिधर मेरा अयान थोड़ी language like not inappropriately, वो grammatically incorrectly बोल रहे थे, तो मैंने उसको on the go correct किया. So let me show you how I did that. And that's a baby gorilla. That's Charlie climbing up the sill and see. What is he wanting to see? And that's a lemur, Mommy. Uh-huh. Do you saw lemur? Can you see a lemur? Can you see a lemur, Mom? Can you see a lemur, Mom? Yeah. So that's a full prompt. So do you saw a lemur? Like जो उन्होंने बोला था वो incorrect था. So, but I knew what he was saying. So मैंने immediately I model prompt के साथ मैंने उनको correct कर दिया. And I give him the prompt back, and he picked it up. And that's the imitation skills. So that's the rhythm that you need to develop with your children to build the language. ठीक है? So and he what is he doing though? What's he doing? Inside the slide. Oh, so there is one example here. And then I have another example of shared control. तो ये आप किताबों में भी शेयर्ड कंट्रोल यूज कर सकते हैं और आप कभी कभी कंबाइन कर सकते हैं कि आपको शेयर्ड कंट्रोल चॉइस के साथ यूज करना हो. इधर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे यूज किया था. फ्लैप बुक्स आर ग्रेट फॉर इट क्योंकि फ्लैप के ऊपर आप हाथ रख के कंट्रोल कर सकते हैं या पेज अगर वो जल्दी जल्दी पलट रहे हो तो आप उनके हाथ पे हाथ रख के रोक सकते हैं कि वो पेज ना पलटें जब तक कि वो आपका प्रॉम्प्ट रिपीट ना करें. And let's go dress up our fireman. What shall we dress him up first, from the bottom or from the top? So that's the choice. And इस तरह ये इशारे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि bottom and top different directions हमारे बच्चों के लिए मुश्किल होती हैं. Left के right, top के bottom. तो you want to give इशारे साथ साथ. Obviously मैं हर वक्त विजुअल लेके नहीं चल सकती तो मुझे इशारे करने अपनी बॉडी लैंग्वेज से उनको एक्सप्लेन करना है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ. Okay, from the bottom. How shall we dress him up first? From the bottom or the top? That's shared control. Top. Okay, all right. Let's go for the top. Let's do it. That's the top. पॉज करके दिखा रही हूँ कि उन्होंने एको किया. मैंने कहा बॉटम के टॉप और वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे तो उन्होंने बस रिपीट कर दिया टॉप. He just echoed it back. लेकिन उनका हाथ बॉटम की तरफ किया. So I again stopped him to show him कि नहीं बॉटम क्या है और टॉप क्या है. He needs a hat. Black helmet. A black helmet. It has a number on it. And now we do the bottom. Gloves. We need gloves. Yes, and? Cargo pants. Yes. Boots. Boots. And let's open up his jacket. Tone gear. Yeah. Logic. Protective gear. And face shield. Face shield. And radio. A radio. Why does he need a radio? Because he needs to listen to some music. I love playing this video in my training because वो हमेशा रेडियो का जवाब क्योंकि he loves to listen to music. तो उनके ख्याल में हर एक को यही मकसद होगा रेडियो यूज करने का कि they listen to music too. तो and it's okay because मेरे why question का सवाल उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया लेकिन मैं ABA स्टाइल में अगर जाती तो मैं कहती हूँ functions features class ये तो सही नहीं उन्होंने जवाब दिया. रेडियो का तो मकसद कुछ और है. But just go with it. Like just positive parenting का मतलब है कि आप उनकी किसी भी attempt को reward करें. That's why they'll try and attempt again and again. So shared control के ऊपर किसी के कोई और सवाल हैं? अच्छा इसमें 2-3 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी. एक तो ये था कि he is asking questions. ठीक है वो आपसे भी पूछा उसने कि आपको ये पसंद है. दूसरा ये कि उसने because उसने अपनी इंटरेस्ट को शो किया और उसकी रीजनिंग की क्योंकि he wants to listen to the music, that's why he needs a radio. ठीक है और वो कमेंट भी कर रहे हैं. So this is what I want. I think this is the thing that is missing in Heather. I'm sorry I'm
शायद मैं बहुत उस पे आ गई हूँ, पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन आई एम श्योर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम स्टक हो चुके हुए हैं। बाकी हैदर में काफी ज्यादा एबिलिटी आ गई है, टॉकिंग, लिसनिंग एंड सारा कुछ। ये 3 जो है ना एस्पेक्ट्स, इन पे काम करने की जरूरत है। स्पेशली जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, कि वो क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चनिंग नहीं वो करता, बिल्कुल भी नहीं कर पाता। जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस है वो उनको तो पूछ लेगा, अच्छा व्हाट इज दिस, या हम कहाँ जा रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन जो से होता है व्हिच, हाउ, कोई और इस तरह के जो WH क्वेश्चंस है वैसे वो नहीं करेगा। तो उसको मैं कैसे इसमें कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा करके देखे, मैंने फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं, उसके सामने मॉडलिंग करके दिखाए हैं। हैदर, मैं और आजलान कर रहे थे बात, आई वॉन्ट हिम टू रिपीट दैट, लेकिन ये है कि स्टिल वो वहां पे स्टक है, क्वेश्चनिंग नहीं करता वो। For you, motivation and shared control. You will use his motivation and you will use shared control with that. तो उनकी जो भी motivation होगी, अब you have to work with me to tell me, हो सकता है उनको puzzles पसंद हो सकता है उनको Lego करना हो। Even हम कभी-कभी iPad use करते हैं। If you've got iPad and he wants me to play this song, मुझे पता है उस songs को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो interested है, motivated है। अयान को music बहुत पसंद है, तो मैं pause का बटन दबा देती थी, ठीक है, and then I want, ये मेरा shared control है, because I want to teach him to say play again, play, क्योंकि वो एक ही song को बार-बार सुनने का भी शौक है। मैंने कहा may as well use it to my advantage। अगर हमारे बच्चे कोई repetitive behavior कर रहे हैं तो हम उसमें language लगा सकते हैं। इसलिए मैंने बताया था कि कुछ बच्चे spin कर रहे हैं या क्या running कर रहे हैं, उसमें हम language लगा सकते हैं। तो shared control would be in my case iPad। मैंने pause का बटन दबा दिया, iPad मेरे पास है, अब he's so motivated, he wants to finish his song, मैं बोलूँगी play again, डिपेंडिंग के लैंग्वेज की कंफर्ट लेवल क्या है। प्ले से काम चल रहा है, इट्स टू सिंपल, प्ले अगेन, 2 वर्ड्स हो गए, वो भी उन्होंने बोल दिए। प्ले अगेन मॉम, 3 वर्ड्स हो गए, वो भी उन्होंने कर लिया। कैन यू प्ले दिस फॉर मी, आपने सेंटेंस दे दिया, साथ में क्वेश्चन दे दिया, राइट। तो यू वांट शेयर्ड कंट्रोल एंड यू वांट मोटिवेशन। उन 2 चीज़ों के बगैर हमारे बच्चे कमेंटिंग नहीं करते और सवाल भी नहीं पूछेंगे, लेकिन कमेंटिंग का, सवाल पूछने का तरीका एक ही है, जवाब देने का तरीका एक ही है, मोटिवेशन, शेयर्ड कंट्रोल। बट वी कैन वर्क टुगेदर ऑन दैट लीना, फॉर शेयर्ड कंट्रोल। शेयर्ड कंट्रोल मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने अपने बच्चे को सारे सवाल, सारी कमेंटिंग, हम आज के दिन तक PRT करते हैं, सुबह शाम रात दिन। PRT एक ऐसी चीज़ है जो कि टॉयलेट में हो रही होती है, गाड़ी में हो रही होती है, गार्बेज फेंकते हुए हो रही होती है, इट्स हैपनिंग ऑल द टाइम। और ये आप लोग भी कर सकते हैं अगर आप लोग ये समझ लें कि चाइल्ड मोटिवेशन क्या है और शेयर्ड कंट्रोल किसे कहते हैं और यूज़ कैसे करना है। शेयर्ड कंट्रोल को यूज़ करने में कुछ वक्त लगता है। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू गाइज आउट। वीडियोस अगर आप लोग भेजें तो मैं रिव्यू करके आप लोगों को फीडबैक दे सकती हूँ, मगर shared control is how you will get that language. Does that make sense? जी सही। I think एक वीडियो मेरे पास और थी, इसके अंदर मैं डिफरेंट सवाल पूछ रही हूँ, जिनके लिए मैंने अभी इतने मोटिवेटेड हैं इस किताब को लेके कि मुझे पता है कि मेरे पास एक ओपन अपॉर्चुनिटी है कि उनको मैं कुछ सिखा दूँ, मैं उनसे कुछ पूछ लूँ। शेयर्ड कंट्रोल मुझे यूज करना आता है, इवन दो किताब उनके पास है, मैं अपने हाथ से रोक सकती हूँ। अब मैं शेयर्ड कंट्रोल फेड भी करना चाह रही हूँ, तो लेट्स टेक अ लुक। Someone got hurt. Someone else got hurt. What happened to them? So you see, मैंने फौरन सवाल नहीं पूछा। He said someone got hurt. और ये स्क्रिप्टेड भी हो सकता था। मैंने कहा oh yeah, मैंने एक्नॉलेज किया, someone got hurt. What happened? तो अब सवालों का जवाब, मेरी कोशिश ये है कि एक टर्न और हो जाए, to keep the conversation going. What happened to the girl? Maybe she got hurt in the fire. Can we see? Can we go back and see what happened to her? Open it. Whoa, there was a fire. Look, everyone is covered with their face masks on. She got hurt. She was hurt in the fire. Oh no. How do you think she's feeling? Sick. She's feeling sick. And she needs help from a doctor. The doctors, the nurses are going to take
her to the hospital. Yeah, they have to take her to the hospital. They have to make sure that she's feeling better. And she has to get a needle, and they have to get a needle. Well, she might need a needle, or she might need an oxygen. And the nurse has to clean. Or she might need an oxygen mask. Right, Ian? Yeah. Can you find an oxygen mask for him? अब इधर आप देख रही हैं कि कॉन्वर्सेशन वो थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, मेरे जुमलों पे जुमले बोल रहे हैं, तो अब मुझे उनको पॉज करना है, थोड़ा स्लो डाउन करना है, और मैं चाह रही हूँ कि वो मुझे खुद दिखाएं कि ऑक्सीजन मास्क किधर है, ताकि वो एक्नॉलेज करें कि अच्छा अम्मी ने अभी कुछ एक डिफरेंट चीज बताई है, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ. तो बट एट द वेरी लीस्ट वी गॉट सम बैक एंड फोर्थ गोइंग. तो ये जो है वो सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, नजर आ रहे होंगे पीछे कि डिफरेंट तरीकों से आप एक डेली एक्टिविटी को इंटरैक्टिव बना सकते हैं, उसमें लैंग्वेज गोल्स लगा सकते हैं. यू वांट टू कीप इट एज नेचुरल एज पॉसिबल, लेकिन देयर इज नो रीजन व्हाई यू कैन नॉट मेक इट वेरी लैंग्वेज बेस्ड. अब जैसे कि मैं एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा ओवरव्यू वेरी क्विकली. हैनन और पीआरटी के हिसाब से हमने मोटिवेशन पकड़ी. इधर जो किताब उनके हाथ में वो उनकी फेवरेट किताब है. मैंने उनको चॉइस दी, तुम्हें डायनासोर की किताब पढ़नी है कि तुम्हें फायरमैन की किताब पढ़नी है. उन्होंने फायरमैन की किताब पकड़ी, तो दैट वाज अ चॉइस. इट वाज इंडिपेंडेंट. मुझे पता है कि आप ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे जैसे कि मैं अपनी मर्जी उनके ऊपर थोपूं. राइट इसरा, वी वर टॉकिंग अबाउट व्हील्स ऑन द बस और जॉनी जॉनी. सो दिस इज अ गुड एग्जांपल. आप अगर व्हील्स ऑन द बस और जॉनी जॉनी के कार्ड्स भी अगर विजुअल्स बना के रखें तो आप चॉइसेस दे सकते हैं. इससे उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या चूज करना है. द मोर दे चूज, द मोर दे यूज देयर लैंग्वेज, एंड दैट्स व्हाट दे वांट. अब उन्होंने फायर स्टेशन की किताब पकड़ी हुई है. मैं उसमें डिफरेंट सवाल पूछूं जो मुझे पता है कि वो उनको आते हैं, मगर मेरा गोल ये है कि वो मेरा सवाल सुन के उसके ऊपर जवाब दें. तो कुछ इनकंसिस्टेंसीज हैं अभी भी जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं. बट दिस इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस गाइस जिधर अयान 2.5 साल की उम्र में कम्प्लीटली नॉन वर्बल थे, 3 years की उम्र में अप्रैक्सिक थे, हेड बैंगिंग करते थे, वर्ड्स नहीं यूज करते थे, फ्रस्ट्रेटेड थे. And he's mashallah just turned 7, so we've come a long way and it's been a long ride. इसमें हमने थेरेपी से भी सीखा, थोड़ा बहुत बायोमेड भी किया, लेकिन as you can see जितनी लेवल ऑफ इंटरवेंशन की जरूरत है हमारे बच्चों को वो थेरेपिस्ट नहीं दे सकते. तो एट द एंड ऑफ द डे ये काम माएँ ही कर सकती हैं. राइट, यू स्टिल टेक द थेरेपीज, यू स्टिल गेट द थेरेपिस्ट टू कम ताकि आपको भी थोड़ा ब्रेक मिले, लेकिन जिस हद तक हमें उनको प्रॉम्प्ट करना है, मॉडल प्रॉम्प्ट देनी है, उनको चॉइसेस देनी है, उनको शेयर्ड कंट्रोल उनके साथ करना है, that is why we have to learn these things ourselves. Any questions today, guys? I think we have then come to the end of our workshop. We just went 22 minutes over. I guess that's okay. Thank you, everyone. It's been such a good journey. आप लोगों से मुझे मिलने को मिला, आप लोगों के बच्चों के बारे में जानने को मिला, and I really appreciate it. अगर आप लोगों के कोई भी और सवाल हो तो आज के दिन तक वर्कशॉप व्हाट्सएप खुला हुआ है, मैं पूरे वीकेंड खुला रखूंगी. You can still send in your questions. मैं आप लोगों को शायद 1-2 मटेरियल्स और भी भेजूं. And if you feel that you have benefited from this, please leave me a good review and recommend it to other parents कि उनका भी भला हो, वो भी ये चीज़ें सीख सकें. क्योंकि मेरे नज़दीक पीआरटी और हैनन एक ऐसी चीज़ है जो कि दूसरे नहीं, घर वाले ही कर सकते हैं. और ये कि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में ये चीज़ें सीखें. Any feedback? बहुत अच्छा वर्कशॉप था. वही बात है कि हर दफा कोई नई चीज सीखने को मिलती है आपसे, और इतना इंफॉर्मेटिव वे में आप बताते हो और इजी वे में, ये बहुत अच्छी चीज है. अच्छा, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, लाइक आई रियली लव दिस बुक बिकॉज इसमें हर इवेंट बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है. यहाँ पे जो फ्लैश कार्ड्स वगैरह मिलते हैं वो बहुत ज्यादा बेसिक से होते हैं. इसमें बच्चा रो रहा है या हंस रहा है, तो शायद इस वजह से भी लाइक जो आपकी रिसोर्सेस है ना, चॉइस ऑफ रिसोर्सेस, इनकी वजह से भी बहुत डिफरेंस आते हैं. तो आई हाईली सजेस्ट यू कि अगर हो सके तो इस किस्म की जो बुक्स है या आपने जो ऐसे रिसोर्सेस यूज किए हैं अपार्ट फ्रॉम हैनन और जो भी पीआरटी की बुक्स है, तो उनके भी नाम वगैरह जरूर ग्रुप में शेयर करें. बिकॉज आई एम श्योर कि अगर पेरेंट्स को बाय कर लेते हैं या उस तरह की चीजों को देखते हैं तो मेरे ख्याल से काफी डिफरेंस आएगा बच्चों में. एंड अगेन थैंक यू सो मच बतूल. नो एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच बतूल. बहुत कुछ आपसे शायद भी आप हमारी सुनती हूँ या अभी भी 2 दिन मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा. So thank you so much. I really like your approach.
approach of talking, approach of sharing things. I really love it. Thank you ladies. Seriously, मेरा बहुत चुल्लुओं खून भरता है when I hear stuff like this. मैं चाहती हूँ कि माओं के पास ये ability हो कि वो अपने बच्चों के साथ ऐसे communicate करें जिससे उनके बच्चों का फायदा होता है और माओं का भी फायदा होता है. इससे हमारी frustration भी कम होती है, हमारा depression कम होता है, mental health improve होती है और बच्चों को भी बच्चों के लिए तो this is so good. So thank you for attending my workshop everyone, and I will share the video link, and please do share the review, and दुआ में याद रखिएगा please. Thank you so much Betul. Thank you.